हर्षिता, ये जो अभी ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये फ्यूचर भी है और वो भी है, प्रेजेंट भी है। प्रेजेंट। तो प्रेजेंट तो लास्ट वाला है और फर्स्ट आपका सेंटेंस फ्यूचर में है। एक ही टेंस होना चाहिए ना पूरे सेंटेंस में। ओके मैम। Tarun, Sneha Didi and Sonika Didi are rest. Sonika Didi, Soumya, can you tell me what's going on? we are making sentences on present, past, and future simple tense. Okay, thank you. Uh, they learn English language. वे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। They learned English language. वे इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। They will learn English language. वे इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून। Is anybody there? गुड आफ्टरनून सर। Is anybody there? यस सर, श्वेता, तरुण, साकेत सर, Okay. and I think they two are rest. And Tarun is also rest. Harshita, do you use Android or iPhone? Android. So tell me, is the blackboard completely visible to you? Yes sir, the blackboard is completely visible to me. Thank you. Now, I will not carry on this question. I just wanted to know. Actually, I have given this idiom in the morning batch or afternoon batch actually. So I want to give you the same. Sumya, can you read please? Self Self praise is no recommendation. अच्छा, Okay. सोनिका दीदी बोला था। Sorry, it was no, but it's okay. Uh, I said Soumya. I wanted to call you. Sonika came out of my mouth. Correct. Uh, Juhi can you tell me which chapter is this sentence related? Please. Sir, present simple. This sentence is recommended. Right. Recommended. अब आप नहीं नहीं कोई बात नहीं इस फिर से हम आपसे रोज बोलेंगे सभी से कि आंसर सही होना महत्वपूर्ण नहीं है अब आप पूछिए मान्या जी से सेम क्वेश्चन Sir, please come again. forgot I Harshita can you forgot. ask Harshita can you ask please Which chapter related to this sentence? it is wrong Harshita but no problem so Soumya will ask this Sir, can I question can I try one more? no thank Please, you please, please, sir, please, sir, please. Soumya ask not ask to um, Mehta ma'am. Mehta ma'am, which chapter is this sentence related? This chapter is related to this chapter is related to Sorry, auntie. Okay, that is
Fine, no problem. So may I select anybody else? Manya Didi, which chapter is this sentence Wait, related? अभी मान्य जी से शायद पूछा था ना? No, sir, I'm raised. Okay, okay. Ask. Didi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to present simple tense. Very nice. अब मान्य जी आप आगे बढ़ाते जाइए. Sonika, which chapter is this sentence related? Didi, come again. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. Sorry. You are right. Carry on. Sorry. अभी हम This sentence. हाँ, please ask. Harshita Didi. Please go ahead. हाँ. Harshita Didi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to simple present tense. Juhi Didi, which chapter is this sentence related? Harshita, I've done, but I am incorrect, शायद. I am done. Okay. Who is raised? Pramila auntie, which chapter is this sentence related? This sentence is related to present simple tense. Who is rest? I think Tarun and Sneha are raised. Tarun? Tarun, which chapter is this sentence related? This sentence is related to simple present tense. Sneha Didi, which sentence is related to this sentence? Sorry, Tarun. Sorry. Which chapter is this related to this sentence? Sorry, Tarun. Sorry. Which chapter is this sentence related? Sorry, Tarun. Which chapter is this sentence related to? Sorry. 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 Which chapter is this sentence related to? Sorry. Sorry. Guys, who asked Tarun? Mehta auntie. So I request her to ask Sneha. Sneha, which chapter is this sentence related? This sentence is related simple present tense. Tarun, which chapter is this sentence related? This sentence is related to
Simple Sorry. present tense. Okay, guys. Thank you very much. Soumya, which chapter is this sentence related? Sir, I think this sentence is related to be present. Soumya, why are you using I think? Sir, because I'm not sure. Okay. And who answered B chapter surely, confirmly? Sonika. Sonika. Okay. Sonika, how can you say this sentence is related to B chapter? बिकॉज सर इसमें हेल्पिंग वर्ब है और कौन ये सी हेल्पिंग वर्ब है बेटा? सर मेन वर्ब है इसमें इज सॉरी सर इस किसका रूप है सोनिका? बी प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस का ओके। अब जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब जिसको पता हो वो बस जवाब दीजिएगा, फिर हम पूरा राउंड चला देंगे। मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? सर, मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो इज एम आर के रूप में आते हैं। वेरी नाइस। Soumya, should I ask the same question in English? Yes, sir. Okay, thank you. When Mr. B comes in present, what are the forms? When Mr. B comes in present, the forms are is am are. Very nice. तो बताओ सौम्या, इस वाक्य में मिस्टर बी कहाँ है? सर, इज मिस्टर बी है। गुड। इसका मतलब तुमने वीडियो देखा है। तो सौम्या, हमने मिस्टर बी इनको ऐसा फनी नाम इसलिए दे के रखा है ताकि ये अच्छे से हमारे को कॉम्प्रिहेंड हो जाए। लेकिन अब हम चलो इनकी ग्रामर की भाषा में बातचीत करते हैं। व्हाट इज सर, इज अ मेन वर्ब। एब्सोल्युटली करेक्ट। तुमने सौम्या इतना प्रॉम्प्ट आंसर दे दिया, आई एम रियली सरप्राइज, क्योंकि इस वाक्य को बोलने में बच्चों को दिक्कत होती है। हम इस वाक्य को बोर्ड पे लिख रहे हैं ताकि जिनको प्रॉब्लम है वो इसको सही रूप से समझ जाए। सो प्लीज आस्क द सेम क्वेश्चन टू समबडी एल्स। सोनिका दीदी, व्हाट इज इज अ मेन वर्ब हर्षिता दीदी व्हाट इज Is a main verb. Juhi Didi, what is is? Is a main verb. Mehta Didi, what is? Is the main verb. Tarun, what is? Is the main verb. Sneha Didi, what is It is the main verb. Manya Didi, what is? Manya Didi, who is rest? Okay, beta, you can ask me. Sir, what is? Very good, very nice.
स्नेहा, इज अ मेन वर्ब हियर। हमने भी एक शब्द जोड़ा है, आपने देख लिया होगा ब्लैक बोर्ड पे। स्नेहा, कंप्लीट द प्रोसेस। What is? बेटा, कंप्लीट द प्रोसेस का अर्थ होता है जो आपने अंग्रेजी में पूछा उसका हिंदी करके पूछे, तब अच्छा, प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कंप्लीट द प्रोसेस। इस क्या है? इस यहाँ पर मुख्य क्रिया है। अब इस शब्द को तुम्हारी जुबान पर रखने के लिए हम पूरा राउंड फिर से चला देते हैं। जो 5 सेकंड तक उत्तर ना दे उसको छोड़ दे व्यक्ति आप, और उसकी जगह दूसरे का नाम ले लिया कर। अपन ये मान लेंगे कि उसको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। Sir, सौम्या, Mania left the class. हाँ, वो टेक्निकली हो जाता है, कभी दूसरी से कट जाता है या नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। नो प्रॉब्लम। सौम्या, व्हाट इज हियर? Sir, is a main verb here. यहाँ पर इस क्या है? यहाँ पर is main verb है। हर्षिता दी, what is here? Is a main verb here. यहाँ पर is क्या है? यहाँ पर is मुख्य क्रिया है। तरुण, what is here? Is main verb there. यहाँ पर is क्या है? यहाँ पर is मुख्य क्रिया है। Sorry, beta Tarun. Come again for Hindi. वहाँ पर is मुख्य क्रिया है। मेहता मैम, what is here? is the main verb here. Sorry. Is the main verb. Is a main verb here. Who is there? Tarun, please complete the process. Okay, Soumya, can you tell me what is the subject of this sentence? Self-praise is the subject of this sentence. Are you sure? Ashita ji, what is the subject of this sentence? Self-praise is the subject of this sentence. Are you sure? Yes, sir. Should I lock? I think so, sir. Thank you. You are absolutely correct. इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, हर्षिता जी? इस वाक्य में सब्जेक्ट सेल्फ प्रेज है। Please ask the same question to everyone. Sonika, what is the subject in this sentence? Self-praise is the subject of this sentence. इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है?
इस वाक्य में सेल्फ प्रेज सब्जेक्ट है। जूही दीदी, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? Self praise is the subject of this sentence. Complete the process. Sonika? इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य में सब्जेक्ट सेल्फ प्रेज है। सौम्या, आर यू डन? Soumya, are you done? Time rest. Yes. Okay, Soumya. What is the subject in this sentence? Self-praise is the subject in this sentence. इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य में सब्जेक्ट सेल्फ प्रेज है। स्नेहा दीदी, what is the subject in this sentence? Self-praise self-praise subject in this sentence. Sorry दीदी, come again. Self-praise is the subject in this sentence. इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? इस वाक्य में सब्जेक्ट सेल्फ प्रेस है। प्रमिला आंटी, Yes. what is the subject in this sentence? Self-praise is the subject in the sentence, in this sentence. इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? इस वाक्य में कर्ता सेल्फ प्रेज है। Who is rest? तरुण? सोनिका इज रेस्ट। सोनिका? पता नहीं क्या। सर, आई एम डन। अच्छा, ओह थैंक यू, आई एम सॉरी। Sir, what is the subject in this sentence? I don't know what is the subject in this sentence. Sir, you know. You don't tell me. You know very well. I will tell you finally after completing the round. Okay, no problem. Actually, Mr. Tarun is rest, and I think he is disconnected because only 8 guys are visible here. Sonika is visible, Mehta madam is visible, Juhi ji is visible, Harshita ji is visible, Soumya is visible now, Sneha is visible. Okay. अब ये सवाल मैं पब्लिकली कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन पब्लिकली। यह प्रश्न मैं सामूहिक रूप से कर रहा हूँ, जो उत्तर दे सके वो देगा। What is the rest part of this sentence? The rest part of this sentence is object or adverb or noun. Adjective or noun, sorry sir. Okay, well tried, very well tried. Now, please ask this question to Soumya. Soumya, what is the rest word in this sentence? The rest part of the sentence is adjective or noun. Harshita Didi, what is the rest part in this sentence? The rest part in this sentence, objective and noun. Sonika, what is the rest part in this sentence?
The rest part in this sentence, an adjective or a noun. Juhi Didi, what is the rest part in this sentence? The rest part in this sentence is an noun or adjective. Who is rest? I don't. Who is rest? I am rest. Okay, Sneha. What is the rest part in this sentence? Rest part in this sentence, object and noun. Uh, Beta, you can ask Promila auntie, your Promila auntie. yes, sir. Auntie, what is the rest in this sentence? Pramila auntie? बेटा तुम ऐसे बोला करो, प्रोमिला आंटी यू आर म्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो. Pramila auntie, you. Sorry. देखो बेटा, Please हम come सब again. सुनो तो पहले हमारी बात सुन लो. देखो वो उनकी प्रोफाइल इतनी वियर्ड रहती है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो बोल भी रही हैं कि नहीं. उनका केवल इतना हिस्सा देख रहा है, देखो, है ना. तो जैसे कोई और म्यूट में बोलता है तो उसके होंठ हिलते हुए अपने को समझ में आते हैं, तो अपन फट से उससे बोल देते हैं यू आर म्यूट, है ना. लेकिन उनका इतना पोर्शन बस देख रहा है और यहाँ तक चिन्ह बस देख रहे, तो अपने को समझ में भी नहीं आता है कि उन्होंने सुना कि नहीं या वो बोल रहे हैं कि नहीं. लेकिन एक अंदाज लगा के उनसे बोल दिया करो कि प्रोमिला आंटी यू आर म्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ऐसा बोलो. Pramila auntie, you are mute प्लीज and please, प्लीज कर रहा हूँ आंटी, है ना. प्लीज अनम्यूट please योरसेल्फ, unmute yourself. Yourself. हाँ देखो तुम्हारे नीचे पूरा लिखा हुआ तो आ रहा है बेटा, सीसी इज ऑन और नॉट. Yes, sir. Yes, CC is on, sir. हाँ योरसेल्फ आ रहा है ना, ये देखो योरसेल्फ. Yes, sir. गुड. अब अच्छे से पूछ. Pramila auntie, you are the mute and please you are. बढ़िया बढ़िया, गुड गुड. हाँ रोज पूछवाएंगे तुमसे, ठीक है. I am not mute. Please come again. Question. What is question? अब क्वेश्चन तो भूल गई होगी बेटा स्नेहा, है ना. Oh, sir. What is the rest in this sentence? Right. Adverb and noun is the rest in this sentence. Good. Soumya, next question goes to you. Soumya, what is the helping verb here? Sir, there is no helping verb in this sentence. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सौम्या. चलो हम तुमसे 2 सवाल फिर से पूछ लेते हैं. आर यू श्योर? Yes, sir. Now I am definitely sure. बेटा यहाँ डेफिनेटली और श्योर एक साथ प्रयोग करना ठीक वैसे ही है जैसे हिंदी में जबलपुर के क्षेत्र में, और हो सकता है नागपुर और बॉम्बे में भी लोग बोलते हो, कुल टोटल कितना हुआ, वैसे ही है डेफिनेटली लगाना और श्योर लगाना. और अगर तुम्हें 2 शब्द लगाना ही है तो आज एक मस्त सेंटेंस बताते, बल्कि 2 बता देते हैं, उनको लगाना. हॉलीवुड में बहुत बोला जाता है आई एम डैम श्योर, सुना है कभी? और ये थोड़ा उत्तेजना में बोला जाता है और थोड़ा लावण्यपूर्वक तरीके से बोला जाता है आई एम प्रीटी श्योर. ये दोनों उसी बात को व्यक्त करते हैं जो तुम कहना चाह रही थी.
Soumya, are you sure? Yes, sir, I'm damn sure. Should I lock it? Yes, sir. You are absolutely right. There is no helping verb. आगे बढ़ा दो बेटा. Juhi ma'am, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. सर कंप्लीट करना है प्रोसेस, हिंदी में बोलो. हाँ, एक बार तो कर ही लेते हैं, है ना? चलो पहले हम ही करते हैं, पहले हम पूछ लेते हैं. सौम्या, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सर, इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं है. बिल्कुल सही जवाब, एक एक शब्द सही. अब तुम भी केवल हिंदी पूछ लो जूही जी से. जूही मैम, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं है. सोनिका, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं है. हर्षिता दीदी, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. हर्षिता दीदी, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं है. Pramila aunty, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं है. जो बच्चा स्नेहा, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं. Anybody is rest? दोस्तों, ऐसी स्थिति में किसी का भी रैंडमली नाम लेकर उससे पूछ सकते हैं. Sonika didi, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में सहायक क्रिया कोई नहीं है. तो दोस्तों, सहायक क्रिया नहीं हो वाक्य में तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मुख्य क्रिया नहीं हो सेंटेंस नहीं बन सकता. और आपसे पुनः निवेदन है, बी चैप्टर का वीडियो फिर से देखें, और जिसके पास सेव हो, जिसने उसमें स्टार लगा के रखा हो, डिलीट ना हुआ हो, वो एक बार और आज शेयर कर देना, तो ऊपर दिखेगा तो देख लेंगे लोग. ठीक है, ओके. दोस्तों, अभी तक आपने देखा बी चैप्टर में जितने भी सेंटेंस अभी तक हमने बनाए हैं, अधिकतर में एडजेक्टिव ही आया है. आखिरी में अधिकतर विशेषण आता है. बी चैप्टर में तीसरे शब्द या तो विशेषण होता है या नाउन होता है, या बोलते भी हैं, बोलना ही पड़ता है आपको विवरण में सेंटेंस बनाते समय. बी चैप्टर बहुत चमत्कारिक चैप्टर है, और ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने वाला है. इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें, पॉज कर करके देखें, और कुछ ना समझ में आए, कुछ पूछना है तो बेहिचक पूछें. आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. तो देखिए दोस्तों, नो रिकमेंडेशन इज नाउन. Soumya, what is no recommendation here? Sir, no recommendation is noun here. यहाँ पे नो रिकमेंडेशन क्या है?
सर यहाँ पर नो रिकमेंडेशन नाउन है। प्लीज कैरी ऑन। सोनिका दीदी, व्हाट इज नो रिकमेंडेशन हियर? No recommendation is noun here. यहाँ पर नो रिकमेंडेशन क्या है? यहाँ पर no recommendation noun है। हर्षिता दीदी, what is no recommendation here? No recommendation is noun here. यहाँ पर no recommendation क्या है? यहाँ पर no recommendation noun है। जूही दीदी, what is no recommendation here? No recommendation is noun here. No recommendation यहाँ पर क्या है? No recommendation यहाँ पर noun है। मेहता दीदी, what is no recommendation here? No recommendation here is noun. यहाँ पर no recommendation क्या है? यहाँ पर no recommendation noun है। Okay, guys, the next question comes to you. Can anybody guess the Hindi meaning of this sentence? Okay, now I'm asking the next question to Sneha. Sneha, beta, what is praise? The praise is object. Very nice. Praise क्या है? Praise object है। Very good. अब तुम ये सवाल किसी और से करो। सौम्या दीदी, what is the praise? Praise is a noun. praise क्या है? Praise एक noun है। बेटा स्नेहा, तुमसे इज लगाते बनने लगा है, बधाई हो, मिठाई भेज देना, ठीक है? सौम्या, गो अहेड प्लीज। जूही मैम, व्हाट इज प्रेज? Praise is the noun. प्रेज क्या है? Praise एक संज्ञा है। सोनिका, what is the praise? Praise is a noun. Praise क्या है? Praise एक संज्ञा है। हर्षिता दीदी, what is the praise? Praise is a noun. Praise क्या है? Praise एक संज्ञा है। प्रमिला आंटी, what is praise? Praise is a noun. Praise क्या है? Praise एक संज्ञा है। साकेत सर, what is praise? जूही जी इज रेस्ट आई थिंक, और नहीं तो फिर स्नेहा से ही पूछ लीजिए, उसका ज्यादा अभ्यास हो जाएगा। स्नेहा, what is praise? praise is noun. Praise क्या है? praise एक praise संज्ञा है। गुड, बनता तो है सब। हर्षिता जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेज? I think sir, praise means दुआ देना। I think so. अपने आप को ब्लेस करना। सेल्फ प्रेज मीन्स अपने आप को ब्लेस करना। थैंक यू वेरी मच, गुड गेसिंग। सोनिका, व्हाट इज प्रेज? What is the meaning of praise? Sorry, I'm sorry. The meaning of praise is Gaurav or Ghamand. Very nice. Juhi ji, what is the meaning of praise? Juhi ji, I don't know exact meaning of praise. Very nice. इसको आप कटाक्ष मत समझिएगा या मजाक मत समझिएगा। हमने वेरी नाइस इस सेंस में बोला
कि आपके मुंह से आई डोंट नो इतना फट से निकलने लगा आजकल, आपके मुंह से मतलब किसी के भी, जबकि अभी हमने आपको प्रेजेंट सिंपल में नकारात्मक वाक्य बनाना सिखाया नहीं है। ये मजेदार बात है। ओके, सौम्या इज रेस। सौम्या बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेज? Sir, the meaning of praise is तारीफ. करेक्ट। अब आगे बढ़ा दो बेटे। Sneha Didi, what is the meaning of praise? सौम्य जी, मैंने ना कम अगेन प्लीज, मैंने आपका पहले वाला सुना नहीं। बेटा एकदम से स्नेहा से मत पूछा करो सौम्या, हर्षिता दीदी से पूछ लिया। Ask me. Okay, Harshita Didi, what is the meaning of praise? The meaning of praise is तारीफ. हर्षिता जी आपने गलत जवाब दिया, फिर से बोलिए कामनी। The meaning of praise is तारीफ. हमें ऐसा सुनाई दिया, द मीनिंग ऑफ प्रेज मीन्स तारीफ, ऐसा कुछ। सॉरी, I am rest. मेहता मैडम से पूछिए, वो बहुत देर से आंसर देने का इंतजार कर। Network is not Auntie, working. what is the meaning of praise? The meaning of praise is प्रशंसा. Sneha, what is the meaning of praise? The meaning of praise is प्रशंसा, तारीफ। गुड मॉर्निंग स्नेहा। यस सर। जागो स्नेहा। यस सर। आंसर देके सो जाती हो, अच्छी बात नहीं। नहीं सर। हर्षिता दीदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेज? I'm done, Sneha. जूही जी I'm rest. जूही आंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेज? The meaning of praise is प्रशंसा. कंप्लीट करोगे प्रोसेस? स्नेहा? गुड, नाइस। हिंदी में? और क्या संस्कृत में पूछोगी? इस वाक्य में प्रेज का मीनिंग क्या है? इस वाक्य में नहीं होगा बेटा। अच्छा स्नेहा, तुम चला एक काम करो, कंप्लीट द प्रोसेस इन सिंधी। हम भी थोड़ी सी सिंधी सीख लेंगे। सर वो आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि घर पर कोई नहीं है ना, तो इसके लिए। जब एक्चुअली बेल डोर बज रही है पर कोई यानी बार बार देखने के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। पानी उसमें चला जाता है ना बेटा बारिश का, तब भी बार बार बजती। Sir, I want to say something, sir. Please. Sir, today I am ready to deliver my speech. Oh wow, wow, very nice, very nice. But Harshita ji, only little time is rest. It will do. Okay, okay, Yes, very sir. nice. तो इसको पहले पूरा कर दे हर्षिता जी, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। Yes, sir. Please complete it, sir. कोई बता सकता है ये हमने जो लिख के रखा है, तो यहाँ पे ये प्रेस किस रूप में काम कर रहा है? वर्ब। तो हिंदी, कैन यू टेल मी द हिंदी? तारीफ करना। एब्सोल्युटली कर। अब बेटा तुम, चलो हम तुम्ही से पूछ लेते हैं, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर तारीफ करना? सर, द वर्ब फॉर तारीफ करना शुड बी प्रेज। तुम अगला सवाल किसी और से पूछ।
और सावधानी से पूछो पहले। अभी यहाँ हर्षिता जी को चुनो, फिर उसके बाद हर्षिता जी सोनिका से पूछेंगी, फिर वो जूही जी से, फिर वो प्रमिला मैडम से, और फिर स्नेहा। Harshita Didi, what should be the second form of praise? And the second form of praise should be praised. Juvi Didi, what should be the spelling of praised? The spelling of praised should be Praised. Sorry, Sonika, what should be the third form of praise? The third form of praise should be praised. Okay. Who is rest? तुम Pramila स्नेहा से, madam. तुम प्रमिला, तुम स्नेहा से पूछो, And स्पेलिंग पूछ लो फर्स्ट। व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ प्रेज, ऐसा पूछ। फिर यहाँ Sneha Didi, what should be the spelling of praised? इसका the spelling of should be बेटा कम अगेन बोल दो ना सोनिका को। Come again, Didi. The spelling of praise should be Praised. अब स्नेहा तुम प्रमिला आंटी से पूछो, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ रिकमेंडेशन। Pramila aunty, so aunty is left. No, she is here. I can see her. Sorry, Pramila aunty. अरे उनका Pramila हाँ aunty, बोलने का you इंतजार नहीं किया करो, वो दिख रही हैं हमें। okay? Harshita didi, अरे what? प्रमिला आंटी से ही पूछो, वो यहाँ है, देखो इधर है। Sir, she is no reply. अब रिप्लाई नहीं कर रही तो क्या पूछो, तो हमें तो दिख रही है, वो मुस्कुरा रही। Yes, I am here. Pramila aunty, what should be the re, re, rim, recommend, rim, sir, एक बार pronunciation पढ़ो, बोलो, रा में छोटी की मात्रा री। recommendation. नहीं, ऐसा गंदी बात, ऐसे बोलो, रा में छोटी की मात्रा। No, sir. बोलो Sir, बोलो स्नेहा, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे तुम्हें। बोलो, रा sir, में मैं छोटी छोटी की मात्रा recommendation. नहीं, ऐसे नहीं, का छोटा क छोटा का क छोटा छोटा का। बोलो। recommendation. नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर वो हर्षिता दीदी तुम्हें डांटेगी, उनकी स्पीच रह जाएगी अगर तुम हमारे साथ नहीं बोलोगे। बोलो, सर, रा में में छोटी छोटी की की मात्रा का छोटा का छोटा क छोटा क माँ छोटा माँ म छोटा म रिकम आधारण डा में एक ही मात्रा ड में एक ही मात्रा रिकमेंडेशन और छोटा सा ना छोटा ना रिकमेंडेशन गलत है। रिकमेंडेशन बेटा, देयर आर थ्री सिलेबल्स, इसके तीन हिस्से। रिकमेंडेशन
Recommendation. रिकमेंडेशन। Recommendation. वेरी गुड। मिठाई बढ़ा देना 1 किलो। अभी पूछने What should be the recommendation of व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ रिकमेंडेशन। meaning of recommendation? फिर तुमने गलत बोला। तुम हमें व्हाट्सएप में इसको 10 बार वो हरा बटन दबा के भेजना, नहीं तो कल हम क्लास में आने नहीं देंगे। Yes, sir. हरा बटन दबा के बोलना रिकमेंडेशन, फिर छोड़ देना, पोस्ट करना, फिर दबाना रिकमेंडेशन, फिर पोस्ट कर देना रिकमेंडेशन 5 बार। ठीक है, आधा कर 50% डिस्काउंट, मौसम का डिस्काउंट 50%, 5 बार। ओके, कैन एनीबडी टेल मी द मीनिंग ऑफ रिकमेंडेशन प्लीज? So I think suggestion. I think some action for herself. Yeah. What is the actual meaning? I don't know the actual meaning of it. सर किसी चीज के लिए किसी और को बताना, मैं आप लोगों को हिंट रिकमेंड देता हूँ, करना। ठीक है? एक गाना गा के हिंट देता हूँ तो आप फट से बता दोगे, ठीक है ना? चांद जो रिकमेंडेशन करता तुम्हारी, हमको वो देता बता। आपको मिलके 7 करोड़। कभी सुना है तुम्हें किसके रिकमेंडेशन से नौकरी मिली है? अरे उसको तो रिकमेंडेशन से नौकरी मिली। अब ये सारी मीनिंग जानने के बाद कैन यू गेस द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इडियम? यस सर। प्लीज। अपनी तारीफ के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। अच्छा प्रयास, लेकिन मुहावरा बाहर नहीं आया है। बहुत फेमस मुहावरा है बच्चों। सर कहना है यस प्लीज सोनिका। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों, जो सोनिका ने बोला है वो अपना प्रचलन में है और किताबों में ऐसा हिंदी मिलता है, तो एक बार आप ये वाला हिंदी जरूर बोलिए। आप चाहें तो वो वाला हिंदी भी बोल सकते हैं जो प्रचलन में है कि अपने मुंह मियां मिट्टू, ये भी बोल सकते हैं। और लेकिन एक ना एक व्यक्ति ये वाला हिंदी जरूर बोल देना प्लीज। सौम्या स्टार्ट, और उसके बाद बोलने के बाद किसी का नाम ले। Self praise is no recommendation. आप मुंह मियां मिट्टू। हर्षिता दीदी। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपने मुंह मियां मिट्टू। सोनिका। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, आप मुंह मियां मिट्टू। जूही दीदी। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, आप मुंह मियां मिट्टू। मेहता दीदी। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, आप मुंह मियां मिट्टू। रूही। Self praise is no recommendation, आप मुंह मियां मिट्टू। बेटा स्नेहा, तुम्हारे 2 साथी और व्हाट्सएप में आप 5-5 बार भेजेंगे। जूही जी भी भेजेंगे और सोनिका भी भेजेगी। सोनिका का उच्चारण भी सही नहीं था, जूही जी का भी सही नहीं था। हरा बटन दबाइएगा, बोलिएगा, पोस्ट कीजिए। हरा बटन दबाइए, बोलिए, पोस्ट कीजिए। ओके, अब हम अपने इस ट्राइपॉड को नीचे करके स्पीच के हिसाब से तैयार कर लेते हैं।
And now I would like to invite Harshita for the second speech. Put your hands together for her. So can I start? First of all, I like to thank you, Jhasa, ma'am, and my fellow classmates to giving me opportunity to deliver my speech in this class. I'm I like to share my daily routine with you all. First, uh, I wake up at 5:30 in the morning. Then I make my bed. Then I use loo and brush my teeth and wash my face. Then I come in my kitchen. I make tea for me and my husband. We have tea together, and meanwhile we read newspaper. Then we go for walk. After coming from work, um, I make some milk for my kids and prepare my breakfast. After preparing my breakfast, we all have together breakfast. Uh, After having breakfast, I sit with my son on his. I sit with my son for his online classes, and then after sitting with him for some time, I check my mobile phone. As I'm a home chef, I check is there any order or not. If there is any order, I prepare my lunch. Meanwhile, I complete my order also. After that, I take shower and prepare my lunch. And after preparing my lunch, we all family member have together lunch. Then later on I wind up my kitchen and take rest for some time. After that, I attend Jhasa online class. No, not Jhasa online classes. I attend um, practice batch. After attending practice batch, I sit with my kids for some time, and then it's a time for Jhasar online classes, 4:30 to 6. After attending class, I make tea, and after having tea, I go for walk with my I go for walk with my friends. From coming back from walk, I teach my son and I help him to complete his homework and all. After it, at 8 o'clock, I prepare dinner, and we all have dinner together at 9. Meanwhile, we interact with each other. Later on, I wind up my kitchen, and we all go for little walk. And when we come back from walk, um, um, I do meditation for some time, and then we all sleep and set alarm for next day morning. Thank you, sir. Thank you, Harshita. Thank you very much. I will tell you the results tomorrow. Actually, result is not like that everybody knows. I will just tell you some negative points and some positive points. Actually, speech is itself a result. दोस्तों इस क्लास में स्पीच अपने आप में ही परिणाम है कि आपने पिछले कुछ दिनों में क्या सीखा वो आपने बोल के देखा। और अच्छी बात ये हो गई कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये सब अपलोड होता है, तो आप अपने मोबाइल से कभी भी किसी को भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, कहीं पे भी खोल सकते हैं आप और
देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो और इसका जो मूल उद्देश्य है आप लोग अब समझ गए होंगे इतने दिनों में कि प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर कहीं नहीं आता है। और चूंकि अधिकतर लोग गलती से लगा देते थे जिनका इंग्लिश में थोड़ा सा कम परिचय था, तो आपने अभी सभी ने ध्यान दिया, सुना कि हर्षिता जी के इसमें अनावश्यक इज एम आर कहीं भी नहीं आया, वो भी चैप्टर में आता है। तो इसको दूर करने के लिए इस तरह की स्पीच होती है। अब जो दूसरी स्पीच है इसी के भूतकाल की होगी, तो आपके पास एक पूरा प्लॉट तैयार है, बस आपको उसको भूतकाल में बदल देना है, तो वो अगली स्पीच हो जाएगी। उससे सेकेंड फॉर्म पर अच्छे से पकड़ आ जाती है दोस्तों। वो बहुत जरूरी है, समय पे देना जरूरी है, क्योंकि हम उस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अब आपको सेकंड फॉर्म की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दें। हमने सौम्या से बोला था, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि रेनू आके स्पीच दे, इसलिए अब आपको आत्मनिर्भर भारत बनना होगा और आप आगे आइए और अपनी स्पीच देना शुरू कीजिए। एक को देख के दूसरा भी प्रेरित होता है। तो अच्छी स्पीच थी, बहुत गलतियां नहीं है, छोटी सी एक आध दो चीजें जो बारीक सी है उस पर हम कल चर्चा कर देंगे। तो यहाँ आज विराम देते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।